Good morning, students. Today I'm going to continue your chapter explanation on the face of it by the author Susan Hill, page number 57. In the previous video, we have seen that how the daddy panics and he says that he have to go and he have to leave the place. He was afraid as seeing the Mr. Lamb at the garden. Mr. Lamb, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climbed the garden wall. You are watching me. I saw you, but the gate's open. All welcome. You are welcome. I sit here. I like sitting. Derry, I don't come to steal anything. I had not come to steal anything. Mr. Lamb, no. The young lad steals, scramp the apples. You are not so young. Derry, I just wanted to come into the garden. Mr. Lamb, so you did. Here we are then. Derry, you don't know who I am. Mr. Lamb, a boy, 13 or so. Mr. Lamb, a boy, 13 or so. Derry, 14. Pause. But I have got to go now. Goodbye. Mr. Lamb, nothing to be afraid of. Just a garden, just me. Mr. Lamb. Derry, but I am not afraid. Pause. People are afraid of me. Mr. Lamb, why should that be? Derry, everyone is it. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. Mr. Lamb, see what? Derry, what they think. Mr. Lamb, what do they think then? Derry, you think here's a boy who look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. यहाँ पर जो है दोनों कॉन्वर्सेट करते हैं. डेरी जो है वहाँ से जाने की बात करता है. मिस्टर लैम जो है उसे कन्विंस करते हैं. वो कहते हैं कि सब वेलकम है, तुम भी वेलकम हो, कोई दिक्कत नहीं. मगर डेरी जो है अपनी जो जाने की जो ज़िद है उसको कंटिन्यू रखते हुए वो कुछ डिस्कशन करता है. कुछ वर्ड मीनिंग. स्क्रैम्प मीन्स टू स्टील फ्रॉम गार्डन. प्रिटेंड मीन्स टू बिहेव एज इफ समथिंग इज़ ट्रू व्हेन यू नो दैट इट इज़ नॉट. अंडरनीथ मीन्स डायरेक्टली बिलो. यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. मिस्टर लैम ट्राइड एंड टू स्टॉप हिम एंड सेड दैट देयर वाज नो नीड टू लीव द गार्डन जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट टू कीप दैट द गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर पीपल्स. इट वॉज ओनली डेरी हु जम्प द वॉल. वो अकेला डेरी ही था जिसने दीवार कूद के अंदर आने की कोशिश की, बाकी गेट तो हमेशा ही सबके लिए खुले रहते हैं. डेरी गॉट एंग्री एंड पॉइंटेड आउट. He also clarified that he did not came to steal anything. That वो कुछ भी वहाँ चुराने नहीं आया था. Mr. Lamb agreed by saying at any time apples has been stolen by young boys and Derry was not so young. और उसने एग्री कर लिया, कहा कि सब बच्चे आते हैं वहाँ पे क्योंकि उन्हें चुराना होता है, मगर जो डेरी जो है वो इतना यंग नहीं था. बट स्टिल डेरी वॉन्टेड टू लिव. फिर भी डेरी वहाँ से जाना चाहता था. मिस्टर लैम told him कि don't be afraid and asked him to stay there for a while. कुछ देर रुकने की कहा उन्होंने, मगर डेरी told him that he was not afraid of anyone, rather people were always afraid of him. वो नहीं किसी से डरता, बल्कि लोग उससे डरते हैं. मगर उन्होंने कहा कि क्यों डरते हैं. Derry said that people got scared on seeing the face. Some considered a bad and ugly thing. Even took pity of his face and says that he was a poor boy. He added that they were fake. उन्होंने कहा कि वो ऐसे सिर्फ मुंह पे बोलते हैं कि वो प्रिटी है, they are sad but they are fake. वो झूठ बोलते हैं. Even he even got scared of his own. वो खुद कहता है कि वो खुद अपने चेहरे को देखकर कभी डर जाता है जब वो कांच में देखता है. He added that Mr. Lamb will also pity him but in this heart he will also be scared of Derry. वो कहता है Mr. Lamb will also pity him. वो भी उसे दया की नज़र से देखेंगे. उनके हृदय में उनके लिए दया ज़रूर होगी, मगर जो है वो जो है इस बात के लिए डरता है. He will always be also be scared of Derry. वो भी डर रहे होंगे अपने मन में, ऐसा मिस्टर लैम को डेरी कहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं है. यहाँ पर वो ऐसा कहना चाहते हैं. अब यहाँ पे मिस्टर लैम क्या कहेंगे पेज नंबर 58 में. नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू डेरी. यस. पॉज हो जाता है डेरी वापस. मिस्टर लैम, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स. अब मिस्टर लैम जो है बात
पलट देते हैं और कहते हैं लेटर ऑन जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा एटमॉस्फेयर तो वो जाकर वो लैडर यानी सीढ़ी लेके आएंगे और स्टिक लेके आएंगे और जितने भी क्रैब एप्पल्स हैं उन्हें नीचे गिराएंगे क्योंकि वो सब पक चुके हैं. दे वर राइप फॉर इट. आई मेक जेली. इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर. उन्होंने कहा कि उस क्रैब एप्पल से वो जेली बनाएंगे. वो सितंबर का टाइम बहुत अच्छा होता है. लुक देम ऑरेंज एंड गोल्डन. दैट्स मैजिक फ्रूट. वो कहते हैं कि देखो उस फ्रूट्स की तरफ देखो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं. वो मैजिक फ्रूट्स हैं. आई ऑफन से बट इट्स द बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली. ये अच्छा है कि बहुत अच्छा फ्रूट है मगर बहुत अच्छा ये है कि उसको पिक करके उसकी जेली बना ली जाए. यू कुड गिव मी अ हैंड. तुम मुझे हेल्प का हैंड दे सकते हो. ऐसे मिस्टर लैम कहते हैं. अब डेली जो है अपना कॉन्वर्जेशन कहता है. वॉट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर. पीपल ऑलवेज डू दैट. वाई डोंट यू आस्क मी वाई डू यू डू what they all do and pretend it isn't true and isn't there. In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because you are afraid to. यहाँ पर डेरी जो कहता है तुमने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया. तुमने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया. तुम दूसरे लोगों जैसा क्यों कर रहे हो. तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम जो दिखाना चाहते हो वो दिखाओ. तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो. इट इज़ंट ट्रू एंड इज़ंट दैट. ऐसा उनको ब्लेम करता है और कहता है कि सब अपसेट हो जाते हैं जब मुझे देखते हैं और अफ्रेड हो जाते हैं. और यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड. और तुम भी मुझसे नहीं पूछना चाहते क्योंकि तुम मुझसे डरते हो. ऐसा डेरी मिस्टर लैम को कहता है. मिस्टर लैम यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो दैन. मिस्टर लैम कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूँ तो तुम बताओ. तुम क्या बताना चाहते हो. डेरी आई डोंट लाइक बींग विद पीपल एनी पीपल. वो कहता है मुझे किसी व्यक्ति के साथ रहना अच्छा नहीं लगता. किसी इंसान के साथ एनी पीपल. मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट. आई शुड से यू गेट बर्न इन अ फायर. अब वो कहते हैं आई शुड से मैं कहना चाहता हूँ टू लुक एट इट. देख के जब बोला कि आई शुड से दैट ये चेहरा जो है जल गया होगा किसी कारण से. डेरी नॉट इन अ फायर. आई गॉट अ एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे. इट एट माई फेस अप. इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट. यहाँ पे मिस्टर लैम जब बोलते हैं कि वो बोलते हैं हाँ तुम्हारा चेहरा शायद किसी आग से जल गया होगा. तो डेरिक कहता है कि नहीं आग से नहीं. वो मेरे ऊपर चेहरे पे एसिड गिर गया था. पूरा चेहरा एसिड ने खा लिया. अब वो कभी भी सही नहीं होगा. हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा. कभी कोई डिफरेंस वो नहीं क्रिएट करेगा. मिस्टर लैम सेड दैट ही वॉजंट अफ्रेड ऑफ डेरी एंड डेरी वॉज शॉक्ड टू हियर दैट. ये तो था मिस्टर लैम कहते मैं किसी से नहीं डरता. और डेरी जो है वो शॉक्ड था ये सुनकर कि वो किसी से नहीं डरते हैं. Mr. Lamb, no, Derry, aren't you interested? Mr. Lamb, you are a boy who came into the garden. Plenty do. I am interested in anybody, anything. There's nothing God made them does not interest me. Look over there, over besides the far wall. What can you see? यहाँ मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं डरता. मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता. डेरी कहता है यू आर आरंट यू इंटरेस्टेड. क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो जानने के लिए सब चीज़ें मेरे बारे में. तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि तुम क्या हो. यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन. प्लेंटी डू. बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे तुम भी हो जो आए हो. और मैं सब में इंटरेस्ट रखता हूँ. जो भी आता है उनके अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिसमें मैं इंटरेस्ट. गॉड ने जो भी बनाया वो सब मेरे लिए इंटरेस्टिंग है. तो वो एक एग्जाम्पल बताते हैं. वो कहते हैं देखो उधर दीवार की तरफ देखो जो दूर दीवार दिख रही है वहाँ देखो तुम्हें क्या दिखता है. तो डेरी कहता है रबिश. क्या बात कर रहे हो आप. मिस्टर लैम रबिश. लुक बॉय क्या तुम्हें नहीं दिखता. लुक व्हाट डू यू सी. तुम देखो तुम्हें क्या दिख रहा है. डेरी जस्ट अ ग्रास एंड स्टफ वीड्स. उसने कहा सिर्फ घास है और वहाँ पर कुछ स्टफ्स पड़े हैं और वीड्स है यानी खरपतवार है जो पौधे अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं वो हैं वहाँ पर. मिस्टर लैम सम कॉल देम वीड्स. इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन that there's fruit and there are flowers and trees and herbs all sorts, but over there weeds. I grow weeds there. Why is one grown green plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing same as you and मी. मिस्टर लैम ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बोला कि तुम देखो वहाँ पर क्या दिख रहा है. तो वो कहता है कि सिर्फ ग्रास है और वहाँ पे वीड्स है. तो कि हाँ कोई उसे वीड्स बोलते हैं मगर अगर आपको अच्छा लगता है इफ़ यू लाइक देम इट्स अ वीड गार्डन दैट. और वो क्यों क्योंकि देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स. वहाँ फ्रूट्स है फ्लावर्स है ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट्स. मगर बट ओवर देयर वीड्स. वहाँ पर वो वीड्स है. आई ग्रो वीड्स. लोग फूल के फल के पेड़ ऐसे बोते हैं मगर मैंने खरपतवार बोए हैं. वो भी क्यों खरपतवार बोला जाए उसे. वो भी तो हरे हैं. वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट अ कॉल्ड वीड एंड अनदर अ फ्रूट. ऐसा क्यों. वॉट इज द डिफरेंस. इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी. ओके यही लाइफ है.
इट्स एज यू, जैसे तुम हो जैसे मैं हूँ। डेरी, यू आर नॉट द सेम। अब डेरी कहता है सब सेम नहीं है, तुम मेरे जैसे, आप हमारे मेरे जैसे सेम नहीं हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, you are got burned face and I have got a thin leg. Not important, not important, you are standing there, I am sitting here, where is the difference? मिस्टर लैम कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, मेरा तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरा पैर टूटा हुआ है, टिन लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खड़े हो मैं बैठा हूँ, वेयर इज अ डिफरेंट, क्या डिफरेंस है? डेरी, हैव यू गॉट अ टिन लेग? अब डेरी को पता चलता है कि उनके पैर टूटा हुआ है, वो लेम है, उनके टिन लेग है। डेरी पूछता मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लेमी लैम्प, सम किड्स से हैवंट यू हियर्ड देम, यू विल। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरा जो पैर है कई सालों पहले जो है ब्लोन ऑफ हो गया था, मगर टूट गया था, और लोग बच्चे मुझे लेमी लैम्प कहते हैं, और तुमने नहीं सुना हो तो तुम भी आगे सुनोगे, और वो मुझे कोई ट्रबल नहीं करता अगर बच्चे मुझे ऐसा बुलाते हैं। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, यू डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। डेरी कहता है कि तुम्हारे पैर पे तो तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो, तुमको कोई देखेगा भी नहीं और कोई नोटिस भी नहीं करेगा और घूरेगा भी नहीं। लैम, सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, इन द एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। कहते कुछ लोग घूरते हैं कुछ नहीं, और कुछ घूरते घूरते थक जाते हैं फिर ख़त्म कर देते हैं घूरना, और वो बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जिसको घूरनी चाहिए, लोग उन्हें घूरेंगे। डेरी, लाइक माई फेस, जैसा मेरा चेहरा? मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स, द वीड्स, और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग ऑन अ सिल्कन लैडर, और माई टॉल सनफ्लावर्स। और यहाँ पे मिस्टर लैम क्या कहते हैं, कैसे क्या घूरेंगे? वो घूरेंगे, वो क्रैब एप्पल्स को घूरेंगे, वो वीड्स को घूरेंगे, वो स्पाइडर को घूरेंगे जो लैडर पे चल रहे हैं, वो टॉल सनफ्लावर प्लांट को घूरेंगे, वो बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें वो घूरेंगे। ऐसे मिस्टर लैम यहाँ पर डेरी को बताते हैं और उसको पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ को समझाते हैं कि लाइफ इज़ पॉजिटिव, इट्स ओनली द लुक ऑन वे विच यू लुक द लाइफ हियर। यही यहाँ पर उस पैराग्राफ में, इस पेजेस में जो है डिस्क्राइब किया है मिस्टर लैम ने। आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।